The previous class we completed advantages of cost accounting. Now next is limitations. In limitations of cost accounting, first point is cost accounting is generally not suitable for small and tiny organizations. Financial accounting is used in every place. Even a small vendor has to use the financial accounting system, has to maintain some books of accounts, because ultimately he has to file the income tax returns. So whenever his income is more than the exemption limit prescribed in law, compulsory that manufacturer, seller, vendor, any businessman can maintain the books of accounts here. But cost accounting system is not necessary. Clear? For example, if you went to Gokul Chaat Bhandar Koti, and if you ask what is the exact costing of your kachori, he cannot give the answer. Whatever is the cost, we don't know, we are selling at this price. Exact costing is correct or wrong, that is not guaranteed, because they are not using cost accounting system. But same question if you ask to any other manufacturer, suppose if you ask to Haldiram is a big business, you ask 250 gram packet of particular item, how much is actual cost, they can easily answer, because they are using the cost accounting system. A small businessman cannot afford the extra expenses on cost accounting system, because cost audit, maintaining cost accounting records, maintaining cost accounting data is an expensive matter, and this is not statutorily required also. Even some companies which are manufacturing goods, cost accounting books of accounts are not necessary to maintain. So here central government has prescribed certain threshold limits. If your turnover is beyond this, then only you have to maintain cost accounting records. If your turnover is below this, no need to maintain cost accounting records. This is the reason that cost accounting subject is not useful for each and every manufacturer or businessman. Financial accounting is necessary, but there is a difference also. Suppose if you maintain books of accounts, financial accounting books of accounts, people will charge very less fees. Even if you file income tax return also, very less amount you will charge. But cost accountant, if you take any service from cost accountant, charge will be very high. If cost accountant is maintaining books of accounts, charge will be very high, because books of accounts are maintained by high turnover companies only. So work is also complicated, work is also not simple. So generally cost accountant will charge high fees. This is the reason. Okay, this is not suitable to small and tiny organization. But financial accounting is useful for any business unit. Clear? The first point is clear to all students, or any doubt? This point clear? भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सब जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है. अब प्रसाद सर शिप से अकेडमी चला रहे हैं, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या यूज़ करेंगे उन्होंने? एक लेक्चर पढ़ाने में कितना कॉस्ट लग रहा मालूम करेंगे उन्होंने? ज़रूरत नहीं है उसका. बट इनकम तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से ज़्यादा कमा रहे ना, तो रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता. थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगाएंगे ना, भी कितना फीस जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना पेमेंट जा रहा है. दैट इन्फॉर्मेशन विल फर्निश टू सीए, दैट पर्सन विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So financial accounting system is almost all every person will use who is earning some income, but cost accounting is not necessary, not compulsory. High turnover companies, large scale companies or service providers will use cost accounting system. Small traders not suitable. Small textile shop, small trader, only buying selling activity, so there is no need of cost accounting system. If there is a manufacturing, there is a service, then cost accounting system will be used. Understand? Only manufacturing service में यूज होता है ये. स्मॉल ट्रेडर के पास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है, because they are not involved in manufacturing,
दे आर नॉट इन मॉडल सर्विस. क्लियर. बैंक में यूज हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी कैन बी यूज्ड, इन टेलीकॉम सेक्टर इट कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी इट कैन बी यूज्ड. तो इन लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस दिस विल बी यूज्ड. इसलिए फीस भी ज़्यादातर हाई आता है यहाँ पर. क्लियर. बट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज, अब जाकर आप छोटे छोटे बिजनेसमैन को बोलेंगे भाई मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, आपको कुछ काम है तो बोलो, करके देता हूँ. क्या बोलेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट का मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, बोलता हूँ. क्या बोलेगा उन्होंने? कुछ काम ही नहीं मेरे पास कॉस्ट अकाउंटेंट का. क्लियर. इसलिए मेरे आपको कोई मैं सर्विस नहीं ले सकता कोई, यही बोलेगा ना वो. अब आपका फ्रेंड का स्मॉल शॉप शोरूम है, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह बेचता है, वो उसके पास जाए और बोले कि कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्विस चाहिए, क्या बोलेगा उन्होंने? टैक्स का कुछ है तो बोलता हूँ जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स और अकाउंटिंग वर्क. हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट कैन गिव दी टैक्स सर्विसेस. टैक्स का सर्विस तो कोई भी दे सकता है. क्लियर. इट इज नो कंपल्सरी प्रोविजन इन इनकम टैक्स लॉ कि ओनली सीए शुड प्रोवाइड टैक्स सर्विस. ओनली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय सीए, बट वर्क कैन बी डन बाय एनी पर्सन. क्लियर. बट एक ट्रेंड चलता है कि बहुत सारे लोग सीए को प्रेफर करते हैं. टैक्स मैटर आया तो किसको प्रेफर करते हैं? सीए को प्रेफर करते हैं. क्लियर. लेकिन टैक्स का जब लॉ बनता ना, उसमें कोई भी सीए नहीं रहता. उसमें कौन रहता है? आईआरएस वाले रहते हैं. कौन रहते हैं? आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले लॉ बनाते. पूरा बनाने में इनका कोई रोल नहीं है, बट चलाने में रोल है इनका. इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट का जो प्रोफेशन है ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं है. अभी तो सोशल मीडिया फेमस होने के कारण ज़रा पॉपुलर हो गया है वो. हाँ, लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट में दोनों इक्विवेलेंट है. प्रैक्टिस साइड गए तो स्कोप ज़्यादा सीए को है. प्रैक्टिस में कॉस्ट अकाउंटेंट का स्कोप थोड़ा कम है, सीए के पास स्कोप ज़्यादा है. क्यों? सीए के पास छोटे छोटे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, 1000-2000 वाले क्लाइंट भी आते हैं. कॉस्ट अकाउंटेंट वाले के पास सिर्फ 25,000 से कम वाला क्लाइंट आते नहीं है. आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी समझो पूरा काम चालू कर लिया, आप रजिस्ट्रेशन का वो ये तो उसके पास भी बात आ सकता है. तो आपका शुरू कर लिया आजकल सब लोग, टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दे रहे लोग. वहाँ वर्ड है कॉस्ट अकाउंटेंट का, काम कर रहे टैक्स का. तो ऐसा हो गया. देखिए नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव. Installation of costing system is complicated also, expensive also. Clear. Example, installation of costing system is expensive or generally complicated means, suppose one organization want to implement activity based costing system. One organization want to implement activity based costing system, suppose banking sector. So in Indian banking sector, even if you use ATM teller machine or you do not use ATM teller machine, generally charges will be applicable. Foreign countries, it is not like that. If you use more ATM services, more charge. You do not use any service, no charge. So according to activity, charge will be decided. India, you use also, do not use also, same. System is not suitable. So in activity based costing, cost is decided on the basis of activity. More activities, more cost, less activities, less cost. Suppose if you want to install or implement that activity based costing in the organization, it is not very easy. It will be complicated. First you need to check if there is a necessity of this or not. Even if you install this, benefit cost you have to analyze. How much benefit you are deriving, how much cost it is on the organization. If cost is more, benefit is less, then organization will not think about installation. Clear? So installation of costing system means so many different methods will be there, techniques are there. So all this can be required, then costing system will be installed. If this is not required, costing system is not installed. So installation is always what? Cost.
Previously 10 years before, in May month also we are taking classes. Right now also we are taking classes. 10 years before, in May month only ACs are on. April, May only. Remaining 10 months, no AC. अब क्या हो गया ट्रेंड? पूरा साल भर AC है. क्यों? इंस्टॉलेशन इजी हो गया ना उसका. पहले AC इंस्टॉल करने वाले, AC रिपेयर करने वाले कम मिलते थे, कॉस्टली रहता था वो. अब क्या हो गया? AC also cheap, installation is free and technician also easily available. तो सब कुछ सिंप्लीफाइड हो गया है, इसलिए ज़्यादा खर्चा जब नहीं आ रहा तो साल भर चलाने में क्या प्रॉब्लम है? पहले 2 महीने चलाए तो दुनिया का बिल आता था, क्योंकि अब तो 5 स्टार AC आ रही ना. पहले नहीं आता था ना 5 स्टार वगैरह, तो बिल विल बी वेरी हाई. बट राइट नाउ 5 स्टार AC, so bill is reducing. So installation is now economical. Previously it is costly. तो फ्यूचर में तुम भी AC की तरह हो जाएंगे अब, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले. देखिए, अगर अभी आपका ट्रेंड कम है तो फ्यूचर में बढ़ता, अब ज़्यादा है तो फ्यूचर में कम होता, उल्टा रहता साइकिल. ऑलवेज रिमेंबर. अब अगर आप ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? पॉपुलर हो जाएंगे. ऑलरेडी पॉपुलर है, और क्या पॉपुलर होते, नीचे ही गिरना है अब. क्लियर? तो फ्यूचर में कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा. ऐसा भी नेक्स्ट टाइम भी PM मोदी ही बनने वाले हैं. मेक इन इंडिया उनका है, तो इंडिया मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग साइड जा रहा है. कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल जरूरत पड़ता है उसमें. ऑटोमेटिक वैल्यू विल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली वैल्यू विल इंक्रीज. अब CA वाले कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचना आप, क्योंकि ऑलरेडी फेमस था तो थोड़ा वैल्यू कम हो जा रहा है उन लोगों का. हंसने का नियम है, जो है फैक्ट बोल रहा हूं. नेक्स्ट, रिजल्ट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम विल नॉट बी करेक्ट. मीन्स सेम, मीन्स both books of accounts will show different results. In some organization they will use integrated system, then result will be same. If they use non-integrated system, results are different. Non-integrated system means cost accounting system will be separately, financial accounting system will be separately. Both are not integrated with each other. Okay, so in that case results are different. If integrated system is followed, results are same. So all companies cannot afford integrated system. Integrated system is costly system, expensive system. Non-integrated system is economical. That's why difference will arise in profits also. Clear? Next, Indian context point of view, recording means cost accounting books of accounts records cost audit is not mandatory for all industries. It is for limited industries only. So in final level you will learn cost audit paper. In that you will understand key for which companies cost audit is compulsory, for which companies cost audit is not compulsory. That is depends on what? Threshold limit, sales, turnover. Clear? तो मिनिमम से मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर का ही टर्नओवर है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता आपको. अभी इसको तो और बढ़ाए वो लोग, 50 करोड़ कुछ करे भी तो उतना टर्नओवर वाला बताते भी नहीं बहुत सारे लोग तो. क्लियर? तो 50 करोड़ और मोर only it is required. Exactly, most of the people will do what? They want to show less turnover. Once cost audit started, generally they have to show true and fair. But before that, most of the people will try to hide so much of information. Clear? So cost accounting is not mandatory for all industries. Only it is for limited number of industries. बट स्कोप बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज बराबर नहीं है. CA में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोगों का इसमें नॉलेज है, काम भी बहुत है बट फीस कम है. इसके अंदर क्या है, नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, काम बहुत है इसके. सो इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन फीस इज़ वेरी हाई,
and only limited persons are in practice cost accounting के अंदर. Clear? So these are the limitations. Next, so limitations understand? समझ में आ गया पूरे? Next is cost unit. Cost unit means what? General question. If you know the answer, you can express. Otherwise, I will explain. Cost unit. Cost unit. Foundation level, some students will have cost accounting ना. हाँ तो फिर क्या पढ़े फाउंडेशन में? फाउंडेशन दिस सब्जेक्ट इज देयर और नॉट? कॉस्ट अकाउंटिंग में था फाउंडेशन में, तो बोलना फिर आंसर फिर. करेक्ट आंसर is generally whatever we produce ultimately that is measured in terms of units only na, and whatever you serve that is also measurable in terms of units. For example, you are giving the service, cab service, transport service, so on what basis you will charge? Kilometer, clear? Passenger kilometer or ton kilometer. Similarly, suppose you are manufacturing one product, so on what basis you will decide the price? Per unit, per ton, per gallon, per liter, per meter. ऐसे ही कर देना. और सबके लिए जो है for 1 unit this much is the price ऐसा डिसाइड होता है क्या? और different sectors measurements are different, cost units are different. वही cost unit है और क्या है देखिए. So cost unit is the unit of product, service or time in terms of cost are ascertained or expressed. So it is basically a unit of measurement. क्या है unit of measurement? Like number per 1000 bricks, clear? Per ton of coal, per meter of cloth, per liter, next per hour, per square feet, like this. अब रियल एस्टेट वाले पर लीटर बेचते क्या? पर स्क्वायर फीट बेचेंगे. ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स कैसा सेल होता है? पर स्क्वायर फीट. वुड, प्लाईवुड कैसा सेल होता है? पर स्क्वायर फीट. क्लॉथ है मीटर के हिसाब से सेल होता है. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है मीटर के हिसाब से ही सेल होता है. क्लियर? नेक्स्ट ब्रिक है 1000 ब्रिक. क्लियर? लिक्विड आइटम्स है कैसे सेल होते हैं वो? लीटर के हिसाब से, गैलन के हिसाब से सेल होता है. तो दिस इज व्हाट कॉस्ट यूनिट. So it is a basis of measurement. Basis of what? Measurement. Okay. So what is the main objective of this cost unit? To express the cost on the basis of every unit. Whatever cost we incur, that is ultimately converted into per unit. That is ultimately converted into per unit. Clear? ये उसका purpose है. So to express the cost in terms of per such unit. So unit of product like per 10 grams of gold, per ton of sugar, already I explained. Service में है तो per kilometer, 1 day room rent, per day room rent. Clear? This will be used by hospitals, this will be used by hotels. Per kilometer, per ton kilometer. Clear? Similarly, sometimes doctors will charge according to per hour also. So for per every 1 hour of service, this is the charge. Clear? This is what ultimately cost unit. इस पे क्वेश्चन आ सकता है MCQ के बारे में. Cost unit पे किस पे आ सकता है? Cost unit पे. Clear है? Some examples he will mention and he will ask what is the cost unit of this particular example. आपको लिखना पड़ेगा वो. Clear?
Next is cost object. Cost object means what? Any student is having an idea? Cost object. देखिए सीएमए फाउंडेशन में पास हो गए ना आप, इंटरमीडिएट में नहीं होते. इंटरमीडिएट रिक्वायर 10 times मोर लर्निंग देन फाउंडेशन लेवल. समझ में आ गया ना? फाउंडेशन में पढ़े जैसा इंटरमीडिएट में पढ़े ना, पहले पेपर में आउट हो जाते आप. पहले वार्निंग दे रहा हूं मैं, आप आगे आपकी मर्जी है. यू डोंट हैव द अवेयरनेस. So change the methodology of learning. Regularly you have to study, regularly attend the classes properly. Don't miss the classes, and regularly study is required. Because after 3 months your exams will start. So you don't have sufficient time for revision also. CMA वालों के पास क्या है, फाउंडेशन पास होकर जब आते ना तो अवेयरनेस की कमी होती है. दे फील कि इट्स लाइक फाउंडेशन कोर्स. इंटरमीडिएट में आते उन्होंने चेंज कर देता. तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बोलिए? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, cost object means the purpose for which you are incurring the cost. For which purpose you are incurring the cost? For manufacturing or for service, for which purpose you are incurring the cost, that is called as what? Cost object. One my baat. So cost object may be defined as anything for which a separate measurement of cost is required. It may be product, or it may be service, or it may be activity, or it may be process. So in simple words, the purpose for which you are incurring the cost. So your purpose can be manufacturing also, your purpose can be service also, your purpose can be activity also, your purpose can be process also. Suppose you are incurring the cost for manufacturing, or sometime you are incurring the cost for service, sometime you are incurring the cost for any activity, sometime you are incurring the cost for प्रोसेस ऑल्सो. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जैसा प्रोडक्ट है आपका, तो क्या बनाएंगे आप प्रोडक्ट में? कुछ ना कुछ बनाएंगे ना. कार बनाना है सर, मोबाइल बनाना है, लैपटॉप बनाना है. क्लियर? दिस इज योर आइटम ऑफ प्रोडक्शन. सपोज योर ऑब्जेक्ट इज टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट. तो जनरली व्हाट आइटम यू मैन्युफैक्चर, दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इंडस्ट्री. This depends on what? Nature of industry. Suppose टाटा मोटर से क्या बनाएगा उन्होंने? कार बनाएगा. अमराजा बैटरी क्या बनाएगा? बैटरी बनाएगा उन्होंने. क्लियर? सन फार्मा कंपनी है, क्या बनाएगा उन्होंने? फार्मास्यूटिकल बनाएगा. पतंजलि है, क्या बनाएगा? लोगों को बेवकूफ बनाएगा. क्या बनाएगा वो? भारत देश में पहले जल्दी बनते बेवकूफ लोग. सर्विस है, सर्विस में क्या करेंगे? विल प्रोवाइड सम सर्विस लाइक होटल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मेडिकल सर्विस. क्लियर? तो ये सर्विस है यहाँ पर देखिए, होटल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट. एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या आता है? जैसे ऑर्डर, ऑर्डर इज एक्टिविटी, इंस्पेक्शन इज एक्टिविटी. क्लियर? दीज आर व्हाट? एक्टिविटीज. क्लियर? जैसा परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आप, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, इंस्पेक्शन, ऑल दिस आर व्हाट? एक्टिविटीज. नेक्स्ट प्रोसेस. प्रोसेस में क्या रहता है? प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर व्हेन यू स्टडी यू विल अंडरस्टैंड दिस. सपोज वन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द ऑयल. व्हाट इज फर्स्ट प्रोसेस? क्रशिंग प्रोसेस. पहला प्रोसेस क्या होता है? क्रशिंग. कोकोनट ऑयल बनाते ना, तो पहले कोकोनट्स पूरे क्या डालते हैं? मशीन में डाल के क्रश करते ना उसको, तो क्रशिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज व्हाट? रिफाइनिंग प्रोसेस. थर्ड इज व्हाट? फिनिशिंग प्रोसेस.
So like this different processes will be involved. Clear? वैसे ही कपड़े बनाने वाला है तो क्या क्या करेंगे उन्हों? क्या करेंगे फर्स्ट? देन ऑयल इंडस्ट्री में क्या करेंगे? क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग, ऐसा करेगा. क्लियर? ऐसे बहुत एग्जांपल्स एक दो दिया है मैंने बस समझने के लिए. क्लियर? तो ये क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस फॉर विच यू आर इंकरिंग द कॉस्ट. द पर्पस कैन बी मैन्युफैक्चर ऑल्सो, सर्विस ऑल्सो, एक्टिविटी ऑल्सो, प्रोसेस ऑल्सो. Suppose if your purpose is to manufacture product, so your cost object is related to product. So you can manufacture a product, that will be your cost object. Clear? इसके लिए खर्चा कर रहे हैं आप, वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. चलो नेक्स्ट इज योर मेन क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. Maximum cost accounting chapters you can understand from this particular area only. So whenever we start any topic, compulsory one of the item will cover from this. Okay? Without this, if you want to learn any topic means you will face difficulties. So before starting this, till cost object, whatever I explained, if any student having doubt query, they can ask here. Online students maybe have sent one message here. Yes, what is your doubt? Cost unit means after incurring the cost, ultimately it is measured in what? Ultimately it is measured in what? Measurable, terms of measurement. Okay. Here any doubts? So again and again CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़िए. फाउंडेशन की तरफ मत सोचो. मैं तो एग्ज़ाम सेंटर को जाने के बाद पहले मैं याद आता हूँ. इसलिए मैं फाउंडेशन को नहीं पढ़ाता हूँ. क्योंकि वहाँ पढ़ाओ मत पढ़ाओ पास हो जा रहे. पढ़ाओ मत पढ़ाओ पास हो जा रहे वहाँ पर. मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट ही बोल रहा हूँ ना, गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ. Next is cost classification. Next, now your doubt is clear, online student. Next question is cost classification. Next area of discussion is cost classification. Cost classification means in how many ways your cost has been classified. So cost classification is based on different situations. First situation is cost is classified on the basis of nature, means element. Thereafter, cost is classified on the basis of behavior. Clear? Functional classification, normality. Clear? Controllability. Okay. Time. Clear? Cost classification is based on decision making. So different bases are covered here. Okay. So this is also very important from cost accounting standards point of view, because first cost accounting standard is cost classification. Total 24 cost accounting standards है आपके, उसमें से पहला standard है आपका cost classification, right? तो देखिए first by nature or element, by function, relation to cost center, behavior or variability, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी, टाइम, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. इसमें से कुछ पॉइंट्स कॉमन आएंगे, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको एक्सप्लेनेशन. क्लियर? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट.
मतलब क्या है इसका? Suppose one organization has incurred the cost. Ultimately, it is dividing that cost into three elements. It is dividing that cost into three elements. How much cost is incurred on material? How much cost is incurred on labor? And remaining how much cost is incurred on expenses. पैसा तीन ही जगह पे खर्चा होता है ना, और कुछ दूसरा है तो बोलो फिर आप. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा कितने जगह पे खर्चा होता है? तीन ही जगह पर होता है ना. फर्स्ट मटेरियल, सेकेंड लेबर, थर्ड एक्सपेंसेस. और कहाँ पे खर्चा होता है बोलिए? एक्सपेंसेस बोल तो उसमें सब कुछ आ गया. अदर देन मटेरियल लेबर, अदर देन मटेरियल लेबर. सो अल्टीमेटली entire cost is segregated into three parts. So first, what will be shown in the statement? Material cost. Next, what is shown? Labor cost. Next, what is shown? Expenses. In material also, labor also, expenses also, direct indirect breakup is required. What is required? Direct indirect. So material can be direct also, indirect also. Labor can be direct also, indirect also. Expenses can be direct also, indirect also. अब direct material means what? Direct labor means what? Direct expenses means what? We have to understand. Indirect material, indirect labor, indirect expenses means what? We have to understand. So direct material. So direct material. अब क्लास खत्म होने के बाद आपको भूख लग रही है, समझिए. You are hungry. Okay? So you went to the KFC, Pizza Hut, and you are consuming pizza or burger. तो बर्गर हाथ में लेते क्या दिखता है आपको मेन उसमें? तो किससे बनता है वो? मैदा. तो उसका मेन डायरेक्ट मटेरियल क्या है? मैदा. विच इज विजिबल. पिज्जा खाते हैं आप लोग, वो किससे बनता है? मैदा से बनता है. Clear? Because it is clearly visible. So anything which is visible is what? Direct material. Clear? Next is this dash I am using for explaining the lecture. किससे बना हुआ ये? Plywood. So plywood is direct material. Clear? This curtain is made of what? Direct material is what? Cloth. But only cloth is there in this curtain, or other items are also there. Thread भी है ना उसको, बिना सिलाई के ठहरता हो ना. Thread is also there. So thread is indirect material. This table, plywood, nails. Nails are what? Indirect material. Adhesive also used here. That is what? Indirect material. Clear? So direct material means उस cost object is identifiable. उस cost object is identifiable. Cost object is identifiable means आप cost जो है टेबल बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो टेबल में मेन क्या दिख क्या रहा है आपको? वो डायरेक्ट मटेरियल है. अंडरस्टैंड? यानी प्लास्टिक चेयर पूरा प्लास्टिक सही है, तो दूसरा आइटम कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट मटेरियल ही है उसके अंदर. इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ है? नो. तो ऐसा है, समझिए. कुछ जगह पर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होता है, कुछ जगह पर नहीं होता है. ओके? क्लियर? एनी डाउट कोई? अब इसको कैसा एक्सप्लेन करिए वो लोग सीमा वाले? डायरेक्ट मटेरियल मीन्स द मटेरियल उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफिएबल इन इकोनॉमिक फिजिबल वे. जिसको इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, तो उसको क्या बोलेंगे आप? डायरेक्ट मटेरियल. द मटेरियल विच कैन बी इजीली आइडेंटिफिएबल, conveniently identifiable, the purpose for which it has been purchased and consumed. So that material is called as what? Direct material. Clear? So cloth, direct material for this curtain, plastic for this chair, plywood for this table, and already you use the example of KFC and Pizza Hut also. Maida is the direct material. Okay? Now indirect material means any material whose cost object is not identifiable in economic feasible way.
अब आप इस पर नज़र डाले, क्या दिख रहा है? कपड़ा दिख रहा, थ्रेड दिख रहा उसमें, ओनली क्लॉथ. क्लॉथ इज डायरेक्टली विजिबल, थ्रेड इज नॉट विजिबल. यू वॉच डायरेक्टली और यू सी दिस टेबल, what is directly visible? Plywood. Nails, adhesive is not visible. But without that we can manufacture this table? Not possible. Clear? So cost object is not identifiable in economic feasible way. अब adhesive लगा है इसके ऊपर, बस दिख क्या रहा, क्या होना? Identifiable आ? That's why it is called as what? Indirect material. Okay? So indirect material also understand? Direct material also understand. One more point also you need to focus here, that is direct material is the material which will increase according to the volume or production. If volume increases, decreases, material cost also increases, decreases. But indirect material will not increase according to volume. In some cases it may increase, but mostly it will not increase according to volume or production. In some cases it can increase, but mostly it will not increase according to volume or production, but direct material increases. Clear? So for one particular item, how much amount of wood is required, that you are interested. How much amount of adhesive required, you are not interested in that. How much cost of nails required, you are not interested in that. Because you purchase nails not for one table. Roughly you purchase one box and you are using from those box some nails for this particular table or screws. But when you purchase wood, what is in your mind? You have to manufacture the table, so how much wood I have to purchase? According to that you will make or decide the purchases. Okay, so I hope direct material, indirect material समझ में आ गया clearly? और any doubt query? अब नहीं समझ में आया तो बाद में फिर डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर पढ़ने गए प्रॉब्लम हो जाएगा फिर. अब अमेरिका जा रहे, इंग्लिश नहीं आता आपको, तो किससे बात करेंगे? फिर दीवारों से बात करेंगे. अमेरिका में एंटर होना चाह रहे तो इंग्लिश आना थोड़ा बहुत, तो फिर स्ट्रगल करेंगे नहीं करेंगे? भाई जी तो कैसा भी लेता है इंसान, बट अच्छा से जीना है तो पहले तैयारी करके जाना ना, वो समझा रहा हूँ मैं. जी तो लेंगे और बिना इंग्लिश के भी गया तो इशारों में तो भी बोले तो लोग उसको दया करके कुछ तो दे देते हैं, बट उससे अपनी रिस्पेक्ट रहती है क्या? तो फिर आपको उससे पहले ही पूरा समझ के जाना है सब्जेक्ट में. तो बिफोर एंटरिंग इन सब्जेक्ट यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस. तो डायरेक्ट लेबर अंडरस्टैंड, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल यू अंडरस्टैंड. नाउ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर इज व्हाट? डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल तो समझा दिया है मैंने, अब क्या पढ़ना है अपने को? डायरेक्ट लेबर. अगर डेफिनेशन पढ़े ना दोनों सिमिलर दिखते हैं आपको, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम दिस डेफिनेशन. यू हैव टू यूज डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस. देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ऑलमोस्ट ऑल सेम ही दिखता आपको. Direct materials are those materials which can be conveniently identified and directly allocated to particular product or service. Example, अब रॉ मटेरियल है तो टिम्बर यूज होता है किसमें? फर्नीचर में. और पैकिंग मटेरियल जैसे कि टिन फूड है तो क्या यूज होता है? टेट्रा पैक वगैरह में. जैसा ऑयल है किसमें पैक होता है? वो टिन में पैक होता ना. पेप्सी है टिन पैक आता ना, या बॉटल में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट क्लॉथ है गारमेंट बिजनेस में, पेपर है बुक्स बनाने में, सीमेंट है बिल्डिंग बनाने में. तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल है. अब पैकिंग मटेरियल में क्या क्या है? तो वाटर है किसमें पैक होता है? वो थैलियों में पैक होता है या बॉटल में पैक होता है? बॉटल. नेक्स्ट प्लास्टिक है, मिल्क घी ऑयल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक के पैकेट्स. और कुछ दूसरे भी है जैसे कि सीमेंट है, वाइट सीमेंट है, प्लास्टिक बैग्स में आता ना वो भी. राइस है किसमें पैक होता है? वो प्लास्टिक बैग्स. और जूट बैग्स. पैकिंग मटेरियल, दैट इज व्हाट? पैकिंग मटेरियल.
अब इनडायरेक्ट मटेरियल तो समझाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट readily or easily identifiable. Okay, indirect materials are those which cannot be conveniently identified and not attributable to particular product directly. Clear? इस एग्जांपल के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या यूज कर रहे हैं अपन लोग? मटेरियल्स ऑफ स्मॉल वैल्यू है, जैसा नेल्स यूज्ड इन फर्नीचर, ओके, थ्रेड यूज्ड इन स्टिचिंग गारमेंट. अब स्टोर्स डिपार्टमेंट है, लुब्रिकेंट ऑयल है, ग्रीस है, कॉटन वेस्ट है, कंज्यूमेबल है. दिस इज ऑल्सो व्हाट? Indirect material. This is used for what? Maintaining the machines. अब देखिए डायरेक्ट लेबर डेफिनेशन ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर. डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच कैन बी रेडिली कन्वीनियंटली विथ ए स्पेसिफिक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर. तो डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच कैन बी रेडिली आइडेंटिफिएबल विथ ए स्पेसिफिक जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर. बट ये समझ में आ रहा है क्या, बोलो आपको? तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन. देखो टेबल है, टेबल में लेबर का वर्क आइडेंटिफिएबल हो रहा क्या? डेफिनेशन के हिसाब से पढ़े तो क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट लेबर इज दैट लेबर विच कैन बी रेडिली आइडेंटिफिएबल विथ ए स्पेसिफिक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर. So in this way, if you want to understand this, you will face difficulty. So best way is what? Any labor who is involved in raw material procurement stage to finished goods manufacturing stage. Any labor who is involved from raw material procurement stage to finished goods conversion stage, that labor is direct labor. Is the labor who is converting raw materials into finished goods. That labor is what? Direct labor. Because his work we can identify on product or service. Is the labor who is directly involved in manufacturing activity, that labor work we can identify on product. भाई लकड़ी ला लिए तो बन गया टेबल. लेबर यूज करते नहीं करते उसके ऊपर. तो डायरेक्ट लेबर मीन्स व्हाट? द पर्सन हु इज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग दिस. डायरेक्टली हु इज मैन्युफैक्चरिंग दिस. Indirect labor is also there. Indirect labor is not involved in manufacturing. Indirect labor is involved in what? Support activities like loading, unloading, transportation, or shifting the material from one place to another place, small alterations. Clear? For these areas, indirect labor is used. But the table which is manufactured here, without labor it is possible. रेडीमेड गारमेंट्स यू आर वियरिंग, शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, तो इट इज मेड ऑफ व्हाट? क्लॉथ. तो क्लॉथ इज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल. बट डायरेक्टली क्लॉथ, डायरेक्टली शर्ट और टी शर्ट इज मैन्युफैक्चर्ड और लेबर रिक्वायर्ड. लेबर इज रिक्वायर्ड. तो विदाउट लेबर इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट. तो वी कैन इमेजिन कि देयर इज ए लेबर वर्क इन्वॉल्व. अब यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा ना आपको कि लेबर इन्वॉल्व हुआ बोलकर, इसलिए वर्डिंग आ रही है यहाँ पर. यू हैव टू इमेजिन कि लेबर वर्क इज इन्वॉल्व. विच लेबर वर्क? डायरेक्ट लेबर वर्क. विच लेबर वर्क? डायरेक्ट लेबर वर्क. जैसे एग्जांपल के लिए बिल्डिंग कौन बनाए पूछते आप तो किसका नाम आता? बिल्डिंग कौन बनाए बोलते हो, बिल्डिंग का जो है कौन कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम आता, लेबर का नाम नहीं आता वहां. अब लेबर बोलेंगे नहीं मैं बनाया बोलते 100 लेबर खड़े हो जाते फिर वहां. सिमिलरली डायरेक्ट लेबर इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डायरेक्ट लेबर. अब ये टेबल कौन बनाए बोलते क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर बनाए बोलेंगे. इनडायरेक्ट लेबर का नाम नहीं आएगा. क्यों? इनडायरेक्ट लेबर रोल इज लिमिटेड. मेन इज व्हाट? डायरेक्ट लेबर. तो डायरेक्ट लेबर में देखिए अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में कौन रहेगा? डायरेक्ट लेबर. वीविंग यूनिट में कौन रहेंगे? रेडीमेड गारमेंट में कौन रहेंगे? बेकरी में कौन रहेंगे? ये लोग डायरेक्ट लेबर. ओके, सिंपल. भाई बर्गर खा रहे, पिज्जा खा रहे, अपने आप बन गया हो ना, या बेकर बनाया उसको? इमेजिन करना पड़ेगा ना. बर्गर पे लेबर बैठा हुआ नहीं है,
बट वी हैव टू इमेजिन, ऐसा है उसका मतलब. आइडेंटिफिएबल मीन्स वी हैव टू इमेजिन. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर. So indirect labor means whose work is not readily identifiable is what? Indirect labor. जैसा सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है क्या? नहीं है. स्वीपर है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है क्या? नहीं है. तो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. So direct expenses means what? Direct expenses means what? Very good. Other than labor material now. Other than labor material. Any expenses which has been incurred by an organization for converting raw materials into finished goods other than direct material and direct labor is called as direct expenses. In other way also we can explain. Direct expenses are expenses which are directly attributable to product or service. Okay, which are directly attributable to product or service. हाँ, so example बोलिए. ट्रांसपोर्टेशन. एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा तो नहीं ना कोई? ओके, आप बोलिए. ट्रांसपोर्टेशन. ओके, ट्रांसपोर्टेशन. इलेक्ट्रिसिटी. पूरे गलत आंसर सही है. पूरे रॉन्ग आंसर सही है. करेक्ट नहीं है ये. आई विल एक्सप्लेन व्हाई दिस इज रॉन्ग. यस. अब देखिए, फाउंडेशन पास हो गए, डायरेक्ट मटेरियल नहीं मालूम, डायरेक्ट लेबर नहीं मालूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं मालूम. ओके, चल गया फाउंडेशन में. फाउंडेशन का मतलब है अपने माँ बाप का घर. गलती करे तो छोड़ देते. इंटरमीडिएट का मतलब ससुराल. फाइनल का मतलब जेल. फाइनल का मतलब क्या है? जेल. गलती करे तो डांटते नहीं, वहाँ सजा बढ़ते रहती फिर वहाँ पे. तो इसे चेंज होना पड़ेगा आपको. ओके, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट बैच में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े शुरू से, बोले तो लास्ट तक पेंडिंग करते गए सफ़र हुए. फिर बाद में स्टार्टिंग से पढ़ो. एग्जाम्पल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल बोलिए. एग्जाम्पल्स वॉट एवर यू हैव गिवन, दैट इज इनडायरेक्ट. कैरेज इनवर्ड. ओके, depreciation is indirect, not direct. Okay, gas and water, that is indirect nature. Loading, handling charges. Okay, indirect expenses. Indirect expenses. Indirect expenses. आप जितने भी बोलते रहेंगे ना, वो पूरे इनडायरेक्ट ही निकलेंगे. वो वॉट एवर यू आर एक्सप्रेसिंग, दैट विल बी अल्टीमेटली वॉट? इनडायरेक्ट. सो थिंक रेशनली. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. वेजेस डायरेक्ट हो गया है, वो डायरेक्ट लेबर हो गया है. वो क्या हो गया? डायरेक्ट. वी नीड डायरेक्ट एक्सपेंसेस यार. इनडायरेक्ट. indirect. Indirect. So direct expenses, we have some examples here. See, first is royalty. Second is cost of special design. Third is higher charges of plant machinery when machinery is taken on hire basis.
ये 3 एग्जांपल्स याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आता हर बार एग्जाम में कि विच इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, विच इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, so royalty, cost of special design and higher charges of plant machinery. Okay. अब देखिए क्या है इसका मतलब. Listen carefully here. Suppose first I am explaining from publication company point of view, right? Suppose one publication company is launching a book on GST. GST पे एक बुक लॉन्च कर रहे हो लोग. So book will be generally sold on the basis of content or on the basis of any other ingredients content. So content will be developed by author. So exclusively sale of book is depends on what? Author's work. If author is not writing the book in best possible way, no possibility of good sale. Stock can be unsold also. Agree with this point or not? Agreed. So ultimately author will not take the lump sum amount here. In some cases he will take lump sum amount also, but in most of the cases he'll generally give an offer to publication company. If one copy is sold, I will charge 10 rupees or I will charge 50 rupees. If you sold one copy, 50 rupees amount you should pay. So 50 rupees what company is paying to author is royalty, is direct expense. Why it is direct expenses? See, first 50 rupees what they are paying, that is a material cost. 50 रुपए जो उसको दे रहे वो मटेरियल है क्या? बोलो. लेबर कॉस्ट है क्या? लेबर है क्या? ऑथर. लेबर कौन रहेगा? बुक बाइंड करने वाला, बुक छापने के लिए काम करने वाला लेबर रहेगा. बराबर. एनी लेबर हु इज वर्किंग ऑन प्रिंटिंग और बाइंडिंग, दैट इज लेबर. पेपर इज रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल. So 50 rupees paid to author is not a material cost, not a labor cost. And if every one unit is manufactured by publication company, how much they have to pay? 50 rupees. So more they produce, more they have to pay. Less they produce, less they have to pay. So directly in proportion to sale or manufacturing, royalty increasing or decreasing? Increasing. If production increases, increasing. Production decreases, decreasing. So this is direct expense. तो डायरेक्टली सेल बढ़ने से बढ़ जाएगा, सेल कम होने से कम हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बट दैट इज नॉट ए मटेरियल ऑल्सो, लेबर ऑल्सो. अब ऑथर फैक्ट्री में काम कर रहे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं है वो. ऑथर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे क्या? एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है वो. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे क्या? उन्होंने अपने घर में बैठ के लिख रहा बुक. This is not a factory overhead, it is not a administration, it is not a selling and distribution. तो किस में डालना फिर इसको? डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना इसको. में डालना डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना उसको. अंडरस्टैंड? दूसरा एग्जांपल लो आप. कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन. कॉस्ट ऑफ जनरली मोटर कार, मोबाइल फोन, फ्लैट किसके बेसिस पे बिकता? डिजाइन. कार में डिजाइन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है तो कार बिकता. भाई टाटा मोटर इंजन इज ऑलवेज बेस्ट, मारुति इंजन इज ऑलवेज बेस्ट, हुंडई इंजन इज ऑलवेज बेस्ट. बट अमंग दिस थ्री विच कंपनीज इंटीरियर्स डिजाइन इज बेस्ट, दैट कंपनी सेल विल इंक्रीज और नॉट? सपोज one of the person has made the design and the design is generally unique design, and because of the design sales of car can increase. So he'll either take lump sum amount or he'll again charge same condition. If one car is manufactured, I will charge this much. So it is what? Cost of special design. So for design purpose they have to pay.
For design purpose, they have to pay. So designer is a designer. Is what? Designer. He is not working in factory. He is not working in administration. He is not working in selling and distribution. That's why it is coming in which category? Direct expenses. Direct expenses. Right? Next, higher charges of plant machinery. Higher charges of plant machinery means you are not owning plant machinery. आपके पास अपना खुद का plant machinery नहीं है. You are hiring. You are taking that machine on hire. Means you have to pay monthly rent. Or you have to pay the rent according to how much time you are using or how many units you are producing. According to that you are paying. Understand? Suppose if you are paying the higher charges according to how many units you are manufacturing, then higher charges of plant and machinery will come in the category of direct expenses. Because more units, less units. Suppose you have your own plant machinery, so even if you produce also, do not produce also, you will calculate depreciation according to time. Depreciation according to time. So that will come in factory overhead. कहाँ पे जाएगा वो? आपका खुद का प्लांट मशीनरी तो फैक्ट्री में लगाएंगे. किस में डालेंगे उसके एक्सपेंसेस को? फैक्ट्री रोड में डालेंगे. बट हायर चार्जेस ऑफ प्लांट है एंड यू आर पेइंग द हायर चार्जेस अकॉर्डिंग टू यूनिट्स प्रोड्यूस, देन इट विल नॉट कम इन फैक्ट्री ओवरहेड. इट विल कम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. Because more units you produce, more cost. Less units produce, less cost. Because higher charges are decided on the basis of units produced. Units produced. So these three expenses regularly they will ask in exam condition. Every alternative item में आते रहता है वो. और भी एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आगे के क्लास में. ये तीन सफिशिएंट है आपके लिए भी. और दूसरा भी सुन सकते हैं आप नया कुछ. इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का रहता है. देखिए इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में रहता, क्यों मालूम है? आप प्रोडक्शन करो ना करो, इलेक्ट्रिसिटी लगा के रखना पड़ता. अब मैं क्लास पढ़ाओ मत पढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी होना नहीं होना, फैक्ट्री में आएगा ना वो. एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता. अब यूनिट बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रहा, यूनिट कम करने से इलेक्ट्रिसिटी कम हो रहा, समझो. ऐसा थोड़ी ना फिक्स भी रहता. कभी मैं प्रोड्यूस नहीं भी करा तो इलेक्ट्रिसिटी लगता ना लगता. सपोज इवन आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग सिंगल यूनिट ऑल्सो, have to pay electricity charges or not? लग रहे ना लग रहे? इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड हो गया. वो किसका ओवर होगा? फैक्ट्री. और बोलिए, दिमाग में जो भी है निकालते जाओ जरा. पेटेंट. पेटेंट से जो पैसा आ रहा आपको, वो ठीक है, वो भी उसमें डाल सकते हैं. करेक्ट. मीन्स पेटेंट से जो फीस आ रही है आपको, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू, if he is receiving on the basis of every unit sold, then it will come in direct expenses. Suppose if lump sum amount is paid by the organization, so it will not come in direct expenses. Why? उसको लोग amortize करते. क्या करते? amortize करते. पेटेंट को 10 करोड़ रुपए दे दिए, क्या कर दिए? 10 करोड़ रुपए दे दिए, तो उसको 10 साल में amortize कर देते हैं. amortization कॉस्ट शीट में नहीं आता. किस में नहीं आता? आगे पढ़ेंगे आप. तो फैक्ट्री में आता है वो. किसमें आता है? फैक्ट्री में आता है. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर पेइंग मीन्स दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर किराया प्रोड्यूस करो मत करो, देना ही है, फैक्ट्री में आएगा फिर वो. क्यों पे करो? रेंट. यूनिट्स प्रोड्यूस पे नहीं हो रहा ना, किस पे हो रहा हो? टाइम फैक्टर पे हो रहा है. किस पे हो रहा है? टाइम फैक्टर. और मशीनरी कहाँ पे इस्तेमाल होती है? फैक्ट्री. दैट्स व्हाई इट इज इन फैक्ट्री ओवरहेड कैटेगरी. ओके. सो हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, अंडरस्टैंड? दैट शुड बी पेड ऑन प्रोडक्शन बेसिस. दैट शुड बी पेड ऑन प्रोडक्शन बेसिस. और कोई दूसरा सोचो आपके दिमाग में है तो? अब पेटेंट ही नहीं आया तो कॉपीराइट कहां से आता? पेटेंट कॉपीराइट का पैसा एवरी यूनिट पे नहीं देते, लमसम देते. क्या देते? लमसम में देते. हाँ, एवरी यूनिट पे दे रहे तो आ सकता है फिर. बट आजकल पेटेंट कॉपीराइट का पैसा एवरी यूनिट पे नहीं दे रहे, लमसम दे रहे. पुराने टाइम पर यूनिट पे देते थे, अब क्या दे रहे? लमसम. जैसे कोई सिंगर है, पहले क्या होता था, एक सॉन्ग गाया उन्होंने तो कितने सीडीज बिके,
कितने कैसेट बिके उस पर पैसे मिलते थे उसको। अब क्या होगा, पहले दिन ही पूरा फ्री में चले आता, वेबसाइट पे आ जाता ना पूरा। आप पैसे दे के खरीद रहे हो, फ्री में सुन रहे हो, वेबसाइट वाला पैसे देता, वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट्स आते ना, तो उससे कमाता उन्होंने, आपसे नहीं कमा रहा है उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट से कमा रहा है, इसलिए वो चेंज हो गया सिस्टम। अभी आपका आंसर सही है, बट नए मॉडर्न टाइम के हिसाब से सही नहीं है वो। ट्रेडिशनली इट वॉज करेक्ट। प्रीवियसली फॉर एवरी वन song by singer, generally lump sum amount is not paid. In very occasional cases, lump sum amount is paid. Okay, how many copies, how many CDs sold, according to that amount was paid. Clear? और कुछ circumstance में lump sum भी ले लेते थे वो लोग. So if lump sum amount is received, that will not come in direct expenses category. फिर वो amortize होता है, क्या होता है वो? Amortize होता है वो. lump sum क्या तो क्या होगा फिर वो? Amortize होंगे वो. Like they will amortize in 5 years, they will amortize in 3 years, they will amortize in 10 years, like this. For every 1 unit produced, if it is paid, then it will come in direct category. Understand? तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब कहाँ पे आएंगे अब? नहीं आएंगे इसके अंदर अब, बिकॉज राइट नाउ अमाउंट इज पेड इन लमसम. किसमें पेड होता है वो? लमसम. लाइसेंस इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट. तो रॉयल्टी रहता है उसको. क्या रहता है? रॉयल्टी. लाइसेंस नहीं है वो, रॉयल्टी है वो. क्या है वो? रॉयल्टी है वो. और कुछ पूछना है इसमें? लमसम अमाउंट अगर मिल गया तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेयरली आएगा. मैक्सिमम अमोर्टाइज हो जाता है. क्या होता है? और जो भी अमोर्टाइज होता है ना, कॉस्ट शीट में नहीं आता उन्होंने. किसमें नहीं आता? फाइनेंशियल नेचर का हो जाता है. क्या नेचर का हो जाएगा वो? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करो मत करो, पैसा तो चले गया, पैसा तो गया. मैन्युफैक्चर करे भी तो गया, नहीं करे तो भी गया. क्लियर? आगे पढ़ेंगे आप, कॉस्ट शीट में पढ़ेंगे वो चीज़. किस में पढ़ेंगे? कॉस्ट शीट में. अमोर्टाइजेशन of intangible asset, fictitious assets written off, these items will not part of your cost sheet, not part of your cost sheet. क्लियर है? और कुछ बोलना है इसमें? अभी एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ सकता है इफ इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. जैसे अल्कोहल मैन्युफैक्चर करते ना, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे तो ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है उन लोगों को, कम मैन्युफैक्चर करे तो कम लगता है. पेट्रोल पे भी एक्साइज ड्यूटी रहती है. जीएसटी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निकला अभी है, थोड़े चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी अभी भी है. कहाँ कहाँ पर रहता? अल्कोहल पर रहता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर रहता है वो. बाकी की जगहों पर क्या रहता है? पूरा जीएसटी रहता है. ओके. तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं. एक्साइज ड्यूटी बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्शन, रॉयल्टी बेस्ड ऑन आउटपुट, हायरिंग चार्जेस फॉर मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट. क्लियर? और भी है जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस और कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग. कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन ऑलरेडी बोला ना, तो ये भी इसमें आ गया है. तो आप कंपनी के कोई काम करने वाले वर्कर नहीं है, सेपरेटली यू आर डूइंग द डिजाइनिंग वर्क एंड यू आर चार्जिंग द अमाउंट. क्लियर? तो उसको बोलते हैं जॉब या प्रोसेसिंग चार्जेस. जॉब और प्रोसेसिंग चार्जेस. अब इसमें और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं है, अपना दिमाग से चलाकर आप और भी ऐड कर सकते हैं. कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, यू आर ए आयुर्वेदिक डॉक्टर. नाउ यू डेवलप वन energy drink. Any person who is consuming 1 glass of that energy drink in morning during summer will not tire till evening time. Will not tire till evening. It's 12 hours complete stamina energy. And that formula is hit. Everybody is satisfied from that. But that is a small Ayurvedic doctor.
so he does not have proper funds to globalize that product. Now he contacted with Dr. Reddy's lab. भाई मेरे पास ये ड्रिंक है, रेड्डीज लैब आप बनाइए, पूरे दुनिया में बेचो, हर पैकेट के पीछे इतने पैसे दे देना मेरे को, फॉर एवरी 1 पैकेट आई विल चार्ज दिस मच ऑफ अमाउंट, बिकॉज ऑलरेडी इट इज मेडिकली प्रूवन एंड टेस्टेड and customer feedback is also excellent. First test, then you can confirm about the contract. अब सपोज उनको पसंद आ गया तो क्या करेंगे फिर आप, फॉर एवरी 1 यूनिट सोल्ड कुछ पैसे देंगे ना देंगे, तो वो भी इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा. इट विल ऑल्सो कम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. Next is indirect expenses. So all indirect costs are what? Other than means material and labor is what? Indirect expenses. So all indirect cost other than indirect material and indirect labor is termed as what? अभी जितने भी एग्जाम्पल बोले ना पूरे यहाँ पे आते देखो आप, क्या क्या बोले आप, रेंट बोले, लाइटिंग बोले, हीटिंग बोले, फाइटिंग बोले, कुछ कुछ की बोले ना आप, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, पूरे किस में आ रहे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ओवरहेड में आते, किस में आते, ओवरहेड्स. ये पूरे फैक्ट्री ओवरहेड है, ये क्या है, ये पूरे फैक्ट्री के खर्चे ये. सो ओवरहेड्स आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आइदर फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गिरेंगे. ओके, clear? But direct expenses are not related to factory, not related to administration, not related to selling and distribution, and it is not direct material also, direct labor also. देखिए जब कॉस्ट शीट बनाते हैं आप, क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट. पढ़े फाउंडेशन में कॉस्ट शीट, या भगवान के नाम पे चले गए एग्जाम को, हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, फाउंडेशन वाले बच्चों से. सीए वाले बच्चे तो पढ़ के बैठे हुए इधर, ठीक है. कॉस्ट शीट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, शर्माओ मत ऐसा. देखिए कॉस्ट शीट में फर्स्ट क्या आता है, मटेरियल आता है, क्या आता, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल आता है, फिर डायरेक्ट लेबर आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आता, उसके बाद अब कोई भी एक्सपेंसेस है ना इसमें आ रहा हो, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, और ना ही डायरेक्ट मटेरियल, ना ही डायरेक्ट लेबर है, कहाँ पे गिरेंगे फिर वो, डायरेक्ट एक्सपेंस में गिरता है वो. अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस. ये लास्ट है, इसके बाद से फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. ओके तो क्या क्या पढ़े अभी आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट पढ़ लिए. ओके अब आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शंस. फंक्शन का मतलब देखिए डिपार्टमेंट, who will function, department. How many departments will work in one organization? Think about that. 3 तो कैसे भी रहेंगे, फैक्ट्री मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, राइट. फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में क्या करेंगे, हाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में क्या करेंगे बोलो मेरे को. कॉस्टिंग में सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट का ही मतलब है यहाँ पे. फाइनेंस डिपार्टमेंट इज नॉट हैविंग एनी रिलेवेंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग. क्लियर? योर आंसर इज करेक्ट, बट इन दिस सब्जेक्ट दैट इज नॉट करेक्ट. फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिपार्टमेंट, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ दैट डिपार्टमेंट. ओके
रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेक्ट. विच डिपार्टमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्वालिटी कंट्रोल, that is also correct. So these are the various departments which are part of one organization system. तो ये क्या क्या फंक्शन करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल मैन्युफैक्चर द गुड्स. एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देखो आप लोग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत बार पढ़े ना. अब मेरे को इसका आंसर बोलो. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विल डू व्हाट? हाँ, तो कैसा बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में? एग्जाम ऐसे लिखते क्या? पूरे वर्कर काम कर रहे नहीं कर रहे बोल के? फिर एग्जामिनेशन का वर्डिंग चाहिए ना अपने को. वो 3 इडियट फिल्म का डायलॉग सीए में नहीं चलता. समझ में आया बात? सीए के एग्जाम में अपने को जितना उसको समझ में सर का नहीं लिखे उतना नंबर ज्यादा आता. सही भी रहना उसको समझ में भी नहीं आना, कि उसके पास चांस ही नहीं रहा नंबर काटने का. समझ में आया ना? मैनेजिंग, सुपरवाइजिंग, ओके. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके. और ये पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हैं आप? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम रहता है पॉलिसी बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना. पॉलिसी बनाना, फैक्ट्री वाले पॉलिसी बनाते क्या? नहीं बनाते. कौन बनाते फिर पॉलिसी? एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन इज व्हाट? सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट. कॉन्सेंट्रेट ऑन सेलिंग एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज. अभी आप जो बोले डायरेक्टिंग वगैरह वो भी उसमें आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बट मेन क्या रहता? फर्स्ट पॉलिसी बनाना. पॉलिसी बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना भी उसका पार्ट है, क्योंकि कंट्रोल नहीं करें तो फिर पॉलिसी फेल हो जाएगा ना. अब देखिए क्या क्या इसमें. फर्स्ट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन तो ये मालूम है सबको कि जनरली फैक्ट्री गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू finished goods. So production cost is the cost of sequence of operations which begins with supply of material and ends with what? Production of goods. So converting raw materials into finished goods process is called as what? Production. And the cost which is involved in this is called as what? Production cost. Okay. So production cost, how to calculate this? Direct material, direct labor, direct expense. तीनों ऐड कर दो क्या था? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज व्हाट? प्रोडक्शन कॉस्ट. क्लियर? तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? प्रोडक्शन ओवरहेड. क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ओवरहेड. अभी कभी कभी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड हो जाता. क्या ऐड होता? बट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ऑफ प्रोडक्टिव नेचर. दे शुड बी ऑफ प्रोडक्टिव नेचर. If administration is not of productive nature, that is not part of cost of production. That is not part of cost of production. The production cost consists of what? Direct material, direct labor, direct expenses, and production overhead. Sometimes administration overhead of productive nature is also part of production overhead. Understand? So production cost समझ में आया सबको? Next, administration cost means what? Administration cost represent cost of formulating the policy, directing the organization, controlling the operations. Okay? And ultimately, what items are part of administration cost? Material, labor, expenses by administration department. तो administration में direct material भी आएगा, direct labor भी आएगा, and
एक्सपेंसेस भी आएगा, बट दिस इज रिलेटेड टू विच? एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट consisting of material used in administration, labor services used in administration, expenses incurred by administration. तो इनडायरेक्ट नेचर क्या रहता है? क्या रहता है ये? डायरेक्ट नहीं रहता है. कौन सा रहता है ये? ऑलवेज दिस इज इनडायरेक्ट नेचर. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. So any cost which is incurred for promoting, publicity, advertisement, okay, for rendering the services to customer, तो किस कॉस्ट में आएगा वो? सेलिंग कॉस्ट. तो सेलिंग कॉस्ट में भी क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट. क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? डिस्पैच. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? डिस्पैच. तो कॉस्ट incurred for packaging and dispatch of goods is what? Distribution cost. So in distribution also material, labor, expenses related to distribution department will come. Next, research and development. Research cost means what? नए प्रोडक्ट की तलाश करना, पुराने वालों पे इंप्रूवमेंट करना. क्या नए प्रोडक्ट की तलाश रिसर्च में आता है क्या? Research means we have to search for new products, new range of products. You have to search for, so anything means whenever organization incurring the cost for searching or finding the new product line, that is research. Or improving the existing products also, improving the existing product line also, that is termed as what? Research cost. अब डेवलपमेंट में क्या आएगा? डेवलपमेंट में क्या आएगा? यस, डेवलपमेंट मीन्स क्या? फिर यहां पे भी वही है ना. देखिए, कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल और न्यू मेथड्स, इसमें आएगा वो रिसर्च. डेवलपमेंट में क्या आएगा? Yes, what items will come in development cost? Selling cost, you understand. Research cost also you understand. Now finally you should concentrate on development cost. Okay, तो बोलिए डेवलपमेंट में क्या आएगा? Think and answer. Upgrading the methods is development. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रहता है. करेक्ट आंसर. डेवलपमेंट में पहले क्या था मालूम? इम्प्लीमेंटेशन आता. प्रोडक्ट बना दिए, नया आइडिया सोच लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करे तो ही डेवलप होता ना. उन्होंने इम्प्लीमेंट करे तो ही डेवलप होगा ना वो. अपना डेवलपमेंट का मतलब है सिस्टमेटिक वे में उसको इम्प्लीमेंट करना. सिस्टमेटिक वे में उसको इम्प्लीमेंट करना. तो वही रहेगा. देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन to produce new product and ends with commencement of formal product is what? Development cost. प्रोडक्ट डेवलप कब होता? जब कस्टमर के पास पहुंचेगा वो. तो प्रोडक्ट डेवलप कब होता? कस्टमर के पास रीच होना वो. तो दिस इज व्हाट? कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस. तो कितने थे इसके अंदर? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब नेक्स्ट रहेगा आपका कॉस्ट सेंटर. अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. बिकॉज कॉस्ट सेंटर ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको. डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही रहता है इसके अंदर. ऑलरेडी यू लर्न दिस. फर्स्ट, व्हाट इज आई एक्सप्लेन्ड? नेचर वाइज और एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन. एंटायर कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. ओवरहेड नहीं बोलना, एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोलते हैं. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस. तो मटेरियल ऑल्सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर ऑल्सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस ऑल्सो. वही है यहाँ पे. देखिए अब नया क्या है इसके अंदर?
ओनली हेडिंग में क्या डालना, खाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाल के लिख देना है बस। क्लियर? तो फर्स्ट कॉस्ट इज ब्रेकअप इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट में कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में व्हाट आइटम्स विल कम, बताओ, एक्सपेंसेस, फिनिश। ओके, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा, अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इसको। वेरिएबिलिटी और बिहेवियर पूरे चैप्टर्स में इसका आएगा पॉइंट आपको। इन एवरी टॉपिक दिस विल कम। फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अगर ये नहीं समझ में आया समझिए तो राहुल गांधी भाषण में कैसे गलतियां करते, वैसे गलतियां होते फिर। राहुल गांधी क्या बोलते मालूम है?